Bismillah Rahman Rahim. After learning how to write a CV, now it is imperative to learn to write job application. So in this lesson we'll be talking about writing job application letter, and we'll be looking at its parts. We'll be discussing its types, and also we'll be discussing the format, that how can we write effective job application letter. So before that, I'm sure that you have never applied for any job before, or rather you have never written a letter, never written an application that is related to job. In your academic life, you might have written an application for leave or any other application in the university, in the college, depending upon your requirements, like you're asking for any certificate, you're asking for concession in fee or reimbursement of fee, or the things like these. But this is going to be your first experience that you have to write a job application or cover letter. So it is basically, you can say job application is a sort of covering letter that it will be introducing you to the employer, and it is used to formally submit a resume or CV for employer interview. Like when you are going to submit your documents, so they will not be submitted directly. They will not be submitted this way, that you have just photocopied your documents and attached your CV and you have submitted it. There are some formalities that along with that you have to write the application, that for which post you are applying for, and for that you have to add your CV, for that you have to add your documents. So this is you can say that you have to meet all the formalities, meet all the requirements. You have to write a job application. So the main purpose of job application is to identify your intent to apply for or seek out a specific position within a company. So being a critical part of job search process, job application will allow you the first opportunity to gain some interest from the employer. So if your application is effective, if it is attractive, ultimately you will gain interest from the employer. It is sent with your CV, and it can make a difference being successful in your job search or not. You know that when people are shortlisted for any job, so apart from looking at their CVs, job application is considered quite important. That most of the time people are shortlisted on the basis of job applications. So the way that you have written it, ultimately that will affect the employer. तो जिस तरह आपने लिखा, जिस अंदाज से आपने बात की, जिस अंदाज से आपने अपना मतम नज़र बयान किया, वो बड़ा ही इम्पोर्टेंट होता है. ठीक है, उसी तरह आपने काम भी करना है. Job application is in fact your first contact with a prospective employer. Being an important document, it speaks about the applicant and his suitability for the job. But mind it that it should not be a copy of your CV. You have to specify some of your achievements, and be sure you know how to handle cover letter weaknesses. So it is always of showing your writing and reporting skills. Please don't mention the salary in the job application. So now let's talk about its paragraphs. I'll be talking about its first three, introductory paragraph, then body, and then concluding paragraph. I've divided this application into 3 paragraphs. It can be more than 3, but it should be in just 1 page. एक पेज से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए किसी भी सूरत में. आपकी जो जॉब की एप्लीकेशन वो 1 पेज से ज़्यादा पे नहीं होनी चाहिए. So when you're going to write your job application, you have to mention in the first paragraph that you have to include the information on why you are writing this application. क्यों लिख रहे हैं?
पहले पैराग्राफ में आपने ये लिखना है, यानी कि जो वैसे ही मुंह उठा के आप एप्लीकेशन लिख रहे हैं या कोई वजह थी, कोई एडवर्टीजमेंट आई, किसी ने बताया, जैसे नॉर्मली जब आप एफएससी में थे तो शायद आपको बताया गया, सिखाया गया उसके बारे में कि इन रिस्पॉन्स टू द एडवर्टीजमेंट पब्लिश्ड इन द न्यूज़पेपर और और या इस तरह कहते हैं जी, आई हैव कम टू नो थ्रू रिलायबल सोर्सेज दैट सम पोस्ट ऑफ माइक्रोबायोलॉजिस्ट आर वेकेंट अंडर योर काइंड कंट्रोल। सो मुख्तलिफ अल्फाज होते हैं, यानी कहाँ से आपको पता चला। देन यू हैव टू मेंशन द पोजीशन यू आर अप्लाइंग फॉर एंड वेयर यू फाउंड द जॉब लिस्टिंग। Sometimes advertisement is published and there are many posts published by the organization, and you have to mention that I'm the one that I'm applying. If for example there were 20 posts, microbiologist, microbiologist, biochemist, एग्रीकल्चरिस्ट, सो मुख्तलिफ जॉब की लिस्टिंग आई हुई है, एक पूरी लिस्ट है, उसमें से आपने 21 नंबर पे आप किया, तो आप मेंशन करेंगे कि मैं किसके लिए अप्लाई कर रहा हूँ, सीरियल नंबर 21 पे फलानी है, मैं उसके लिए अप्लाई कर रहा हूँ। यू हैव टू मेंशन इट। एंड इफ यू हैव एनी कॉन्टैक्ट दैट इज म्यूचुअल बिटवीन यू एंड द ऑर्गेनाइजेशन, यू कैन मेंशन दैट वन। यानी आपको कहाँ से पता चला, आपको अखबार से पता चला, कहाँ से पता चला, म्यूचुअल कॉन्टैक्ट के हिसाब से ये होता है कि आपके जो HR हैं उन्होंने मुझे बताया, HR फलाने उन्होंने बताया कि वैकेंसी है, तो आप फिर उस हिसाब से चले जाते हैं जी वैकेंसी है तो मैंने इसलिए अप्लाई किया। यानी आपसे पूछा जा सकता है इंटरव्यू में ना कि आपको कैसे पता चला है, या आपको कैसे पता चला है जी कि हमारे पास वैकेंसियां हैं, या वैसे ही बस आपको ख्वाब आया, मुंह उठा के आ गए जी यहाँ पे। So you have to mention the name of mutual contact and you have to mention the enclosure of your CV resume. आप उसके बारे में भी mention करेंगे, जैसे मैंने बताया कि when you will be sending your CV, so you have to mention attach the covering letter. That is sometimes it is called covering letter, sometimes it is called job application, sometimes it is called job letter. जो भी चीज़ है, नाम मुख्तलिफ हैं, असल काम तीनों का एक जैसा है। फिर आप उसमें mention करेंगे that my resume is attached here with, जो जो चीज़ें आपने लगाई आप सबका मेंशन करेंगे। आपकी एप्लीकेशन पे ये क्यों मेंशन किया जाता है, इसलिए कि यू हैव अप्लाइड फॉर द जॉब, योर एप्लीकेशन इज हैंडेड ओवर टू द सिलेक्शन बोर्ड एंड इफ़ यू हैव बीन शॉर्ट लिस्टेड, तो क्लर्क को फिर बताया जाता है कि बच्चे इसके साथ जो बाकी डॉक्यूमेंट्स लगे हुए वो भी भिजवाएं। सो इदारे ने अगर आपसे मांगे, आपकी डिग्रीज मांगे, आपके ID कार्ड, जो चीज़ मांगी, आप सबका मेंशन करेंगे, ये चीज़ें इसके साथ अटैच की गई हैं, एंड मेक श्योर दैट यू हैव अटैच दोज डॉक्यूमेंट्स विद इट। अटेस्टेड मांगे अटेस्टेड, अगर सिंपल मांगे तो सिंपल आपने उसके साथ अटैच किए हैं। अब उस अटैचमेंट से ये होगा कि अगर उस क्लर्क ने गलती से कोई चीज़ नहीं ना निकाली, डाउनलोड की, आपने मेंशन की हुई है, तो फिर वो क्लर्क को कहेंगे भाई इसने भेजा हुआ है, ये चीज़ भेजी हुई है, इसने लिखा हुआ है, आप इसको भिजवाएं या इससे मंगवाएं। So that is why we say that you have to write whatever you have attached, you have to write about it that this is attached herewith. ठीक है? Then will be after introductory paragraph. Now you have to write the middle paragraphs. It can be one, it can be more than one, but once again, please don't exceed the page limit. There you have to write it in one page only. ठीक है? एक से ज़्यादा पेजेस पे नहीं जाना किसी भी सूरत में। लाइन नहीं लगा देनी पेजेस की, ढेर लगा दिया जी पूरा, मतलब है जिस तरह आपको ऐसे पैराग्राफ राइटिंग का कहा गया तो आपने जनाब 600 अल्फाज का पैराग्राफ लिखा, आपको 100 वर्ड्स का कहा गया तो आप 150 100 वर्ड 150 वर्ड्स का कहा गया तो आपने 600 का लिख दिया। ऐसा काम नहीं करना वहाँ पे। सो इन द मिडिल पैराग्राफ यू हैव टू राइट व्हाट यू आर गोइंग टू ऑफर द एम्प्लॉयर। You have to specifically mention how your qualifications match the job you are applying for. ठीक है, आप उसके बारे में बताएंगे कि मैंने ये डिग्रियां हासिल की हुई हैं, कि मैंने जनाब BS माइक्रोबायोलॉजी किया हुआ है, मैंने ये ट्रेनिंग ली है, मैंने ये लिया हुआ है, सारी चीज़ें उस जॉब के लिए फिट हैं और वही वहाँ पे मेंशन करनी है जो कि आपने CV में भी लिखा हुआ है। अच्छा, इसमें एक बात और याद रखनी, व्हेन यू विल बी राइटिंग योर जॉब एप्लीकेशन लेटर और यू विल बी राइटिंग योर CV, डोंट टेल अ लाई, झूठ नहीं बोलना किसी भी सूरत में। ठीक है, you have to state confidence in your ability and specify why you are specifically fit for the job. ठीक है,
कि इस जॉब के लिए आप क्यों फिट हैं, क्यों सूटेबल हैं. रिमेंबर यू आर इंटरप्रेटिंग योर CV, नॉट रिपीटिंग इट. सिर्फ उसको इंटरप्रेट कर रहे हैं. जब कोई चीज़ इंटरप्रेट की जाती है तो उसको शॉर्ट फॉर्म में बताया जाता है, डिटेल नहीं दी जाती, लंबी लंबी कहानियां नहीं बयान की जाती. ठीक है. And in the final paragraph, you have to conclude your cover letter by thanking the employer for considering you for the position. Include information on how you will follow up. आप उसके बारे में भी लिख दें कि आप कैसे फॉलो अप करेंगे. मीन्स आप मीटिंग कि भाई मैं सैटरडेज को अवेलेबल होता हूँ, मैं शाम में अवेलेबल होता हूँ, आप ये मेंशन कर दें वहाँ पे. एक इंडिकेशन होती है उनके लिए कि ये बंदा किस टाइम, ये वाकई ये इंटरेस्टेड और किस टाइम पे ये आएगा और आके ये काम करेगा, यानी कि मुलाकात इसके साथ किस टाइम पे होगी. ठीक है. So let's start with the application. Then last पे final paragraph के बाद there will be a complimentary clause that you have to close your paragraph with sincerely yours, best kind regards, yours truly, most sincerely, respectfully yours, thank you for your consideration. ठीक है. अब लास्ट पे आपने ये लिखना है and you have to leave a space for your signature and then type your name. ठीक है. सिग्नेचर के लिए जगह छोड़ेंगे, लास्ट पे अपना नाम लिख दें, ऊपर आप दस्तखत कर देंगे और उससे नीचे आप इनक्लोजर लिख दें. ENCL लिख के जो चीज़ें आपने इनक्लोज की हैं वो आप मेंशन कर देंगे वहीं साथ. सो लुक हियर, दिस इज अ जॉब एप्लीकेशन. ठीक है. इस तरह की लगती है. जब आप जॉब एप्लीकेशन लिखेंगे, आप आई वुड रिकमेंड यू टू राइट इट ऑन कंप्यूटर, MS वर्ड फॉर्मेट पे लिखें. इसको उसमें ना लिखें, हाथ से लिख के मत भिजवाएं. सारी चीज़ें हमने लेफ़्ट पे रखी हैं, अमेरिकन स्टाइल हमने अडॉप्ट किया, जिसको हम अब उसमें हमने क्या किया, पेज के टॉप से 1.5 इंच जगह छोड़ी, बिल्कुल टॉप से, और उसके बाद हमने लेफ़्ट साइड पे हेडिंग लिखी, रिटर्न एड्रेस लिखा, फिर 4 से 7 स्पेसेस, यानी इंटर दबाया 4 दफ़ा कम अज़ कम दबाया. उसके बाद जिसको आप लिख रहे हैं उसका एड्रेस लिखा, देन एड्रेस ही लिखा, डियर मिस फ्रॉन्ट. अब जो भी है यहाँ पे हो सकता है डियर HR मैनेजर या सिंपल HR मैनेजर, डियर सर. अब यहाँ पे मिस फ्रॉन्ट लिखा हुआ है इसलिए हमने लिखा है. अगर नहीं है तो फिर सिंपल डियर सर या मैम, सर ऑब्लिक मैम लिख दें. ठीक है. एड्रेस भी उसी तरह आपने करना है. उसके बाद देखिए that I have added 3 paragraphs. This is introductory. After salutation and greeting, this is introductory paragraph, single spaced. ठीक है. उसके बाद 2 स्पेसेस छोड़े, हर एक के अंदर 2-2 स्पेसेस छोड़ने हैं. स्वाय पहले 2 एड्रेसेस के, बाकी हर जगह पे 2-2 स्पेसेस, लास्ट पे भी 4 छोड़ने. ठीक है. फिर 2 स्पेसेस छोड़े, फिर लास्ट पे हमने उसको कंक्लूड कर दिया. बॉडी, फिर कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग, यू कैन लुक हियर, देन देयर इज अ स्पेस फॉर सिग्नेचर. ठीक है. यू कैन रीड इट आउट. I would ask GR, please read this application, job application, please. GR, please इसको पढ़िए. सर ये थोड़ा सर ऊपर से एड्रेस वगैरह सारा पढ़ना है, जस्ट डियर मिस फॉन्ट सारा पढ़ना है. सर ये बिल्कुल भी वाज़ेह नहीं हो रहा, ब्लर हो रहा है. लैपटॉप पे कौन अटेंड कर रहा है क्लास? Okay, so I'm just going to tell you. At the top you have to write the address, and after that you have to leave 4 spaces. Then you have to write the address, inside address किसको भेजना है. Then you have to write salutation or greeting, give 2 spaces, salutation, greeting, and after greeting कोलन लगाने हैं. देख लिए यहाँ पे 2 डॉट लगे हुए हैं. कोलन के बाद फिर 2 स्पेसेस छोड़ने हैं, फिर पहला पैराग्राफ लिखना है. Then leave 2 spaces, then write the second paragraph. Then leave 2 spaces, then write the third paragraph. Then leave 2 spaces, write sincerely. Then leave 4 spaces and write the name. ठीक है. अपना पूरा नाम लिख देना है.
ये इस तरह होगा, ठीक है जी। ओके, so there are two type of letters. The first one is solicited application letter, whereas the second one is unsolicited application letter. Solicited application letter is basically a direct response to job advertisement, ठीक है। तो जब जॉब एडवर्टीजमेंट के हिसाब से फिर आप उसकी हेडिंग दे देंगे यहाँ पे, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ माइक्रोबायोलॉजिस्ट, ठीक है, जिसके लिए भी आपने अप्लाई किया उसका आपने यहाँ पे लिख दिया, डेट पे लिख दिया आपने, साथ यहाँ पे दो स्पेसेस छोड़े, ठीक है। अब ये 4 स्पेसेस इसलिए छोड़े जाते हैं, यहाँ पे आपने डेट दरमियान में लिखनी होती है, ठीक है, ये इसलिए 2 स्पेसेस छोड़ के फिर हम आगे चल पड़े। So it will tell that candidate is aware of organizational demands, and your solicited application letter will discuss how specific skills apply to the job, showing that you are aware of job and attached responsibilities. अब यहाँ पे देखिए मैंने एम्प्लॉयर की बात भी लिखी, so you can look at this one with reference to your advertisement in the South China Morning Post on 17th March 2014 for the post above. I would like to submit my application for your consideration. अब जैसे अभी आप यू आर गोइंग टू बी ग्रेजुएटेड, इस तरह ये भी ग्रेजुएट होने वाला है, तो इसने लिखा कि मैं जून में ग्रेजुएट हो जाऊंगा यहाँ से, और वो सारी चीज़ें लिख रहा है, ठीक है। अगेन लास्ट पे उसने इंक्लोजर लिखा, कौन सी चीज़ इंक्लोज की है वो नीचे पे डिटेल्स दे देता है, ये चीज़ें इसके साथ इंक्लोज हैं। आप इसको अपने पास संभाल के रखें और इसी को देख के आप जॉब के लिए जब आप अप्लाई करेंगे, ठीक है, when you will be applying for the job, so you have to look for the application, कि आपने जब सबमिट करनी है सीवी के साथ आपने जॉब एप्लीकेशन भी लिखनी है। पहले पेज पे आपकी जॉब की एप्लीकेशन होगी और उसके बाद अगले 2 पेजेस पे आपकी सीवी बनी होगी, और ये ऑल दीज थिंग्स विल बी कन्वर्टेड इनटू पीडीएफ फॉर्मेट, ठीक है, पीडीएफ फॉर्मेट में कन्वर्ट करके देंगे, और जहाँ पे साइन है वहाँ पे तस्वीर बनाएं, खींच के उसको वहाँ पे शिफ्ट करें, तो अपने सिग्नेचर वहाँ पे लगाएं। Look at the format for solicited application letter. As you will be writing solicited, you will be provided with the advertisement. So look at this one and you have to write this one. ठीक है, इसी तरह की आपने लिखनी है। Are you getting my point? क्यों नहीं समझ आया कि नहीं आया? Then there is an unsolicited application letter. You are sitting at home and your father asks you कि बेटा एक एप्लीकेशन लिख दो अपनी जॉब के लिए, मैं अपने बॉस अपने जो है ना अपने साहब को देता हूँ, तो जब कोई वैकेंसी वगैरह होगी तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये अनसॉलिसिटेड होता है कि वैकेंसी कोई नहीं होती, वैसे ही आपसे वो लिखवा दिया जाता है। तो उसमें आप देखिए टॉप पे आपने डेट लिखी, फिर आपने एड्रेस लिखा उस बंदे का। अनसॉलिसिटेड लेटर के अंदर आप वो नहीं लिखते हैं। आप इसमें ये चीज़ देखिए कि वी आर नॉट गोइंग टू राइट आवर ओन एड्रेस, अपना एड्रेस नहीं लिखते डायरेक्ट। अनसॉलिसिटेड लेटर में डायरेक्ट आप डेट लिखते हैं, 2 स्पेसेस देते हैं, जिसको लिख रहे हैं उसका नाम लिखते हैं, एड्रेस लिखते हैं, 4 स्पेसेस देते हैं, उसको सैल्यूटेशन देते हैं, फिर 2 स्पेसेस दे के आगे एप्लीकेशन लिख देते हैं, अपनी डिटेल्स सारी की सारी उसको दे देते हैं, और लास्ट पे उसको कह देते हैं कि मैं भी कि आप मुझे जब बुलाएंगे तो मैं अवेलेबल हूँ, ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर, इसके अंदर ही आप उसको मेंशन कर देते हैं। सो अनसॉलिसिटेड एप्लीकेशन लेटर इज बेसिकली written without announced job opening. It points out personal qualities, qualification and experience suitable for a particular job position in the organization. अब आपको उस ऑर्गेनाइजेशन का पता है कि उधर किस तरह की जॉब्स होती हैं, तो आप किसी ख़ास तरह की जॉब के लिए अप्लाई करते हो, फिर बताते हैं कि ये मुझे ये चीज़ें आती हैं, मुझे ये पता है, तो मुझे आप अपने महकमे में रख लें। अब जैसे मैंने एक बंदे को देखा, उसने लिखा जी किसी इदारे के अंदर से जॉब के लिए, उसने कहा जी कि मैं अपने बेटे का लिखा कि अपने साहब को वो एप्लीकेशन लिख रहा है उर्दू में, तो कहता है जी कि मैं फ़लानी तारीख को रिटायर हो रहा हूँ, तो मेरा बेटा जो है उसने मैट्रिक उसने पास की हुई है, तो मेरे बेटे को मेरी जगह पे नौकरी पे लगा दिया, वॉचमैन या क्लर्क या फिर उधर टेक्नीशियन या फिर उधर, ये सारी उसने चीज़ें लिख दी। अब उसकी बजाय अगर वो ये लिखता कि मेरे बेटे ने FSC की हुई है, उसने डिप्लोमा एसोसिएट इंजीनियरिंग का किया हुआ है, उसको ये चीज़ें आती हैं,
तो बराए मेहरबानी उसको फ़लानी जॉब के फ़लानी पोस्ट के अंदर उसको लगा दिए, वो ज़्यादा बेहतर होती। ये नहीं है भाई ठीक है जी वहाँ चौकीदार भर्ती कर दें इसको, चौकीदार नहीं बनता, पीएन बन, चौकीदार पीएन वो क्या कहते हैं जुम्मेदार, अच्छा क्लर्क, जो भी है जी, कोई भी वैकेंसी है तो मेरे बेटे को भर्ती करना है। सो इट शुड नॉट बी लाइक दिस। इस तरह की आपने नहीं लिखनी, एक स्पेसिफिक टारगेट रख के लिखना है ताकि आप अपनी सूटेबिलिटी जब वहाँ पे बताएंगे तो डेफिनेटली इफ़ यू आर गोइंग टू बी कंसिडर्ड दैट देन दैट एप्लीकेशन विल हेल्प। ठीक है, आपको सपोर्ट करेगी। वैसे मुंह उठा के हमें बस ठीक है जी कोई हो वैकेंसी बस मेरा कुछ करें, मुझे भर्ती कर दें। So what you must have to do, now we are going to talk about that. Your job application should not be more than one side of A4 page. ठीक है, A4 पेज के हिसाब से एक पेज से ज़्यादा की एप्लीकेशन ना हो। अगर ये ज़्यादा होती है तो फिर ये एक बिजनेस लेटर नहीं होता बल्कि ये एक एसे बन जाता है। You have to state the job you are applying for and where you found out about it. ठीक है, आपने बताना है कि आपको कहाँ से मिला इस जॉब जिस पर्टिकुलर जॉब के बारे में बताना है और कहाँ पे। हाउ डिड यू कम टू नो अबाउट दैट पर्टिकुलर जॉब, बिकॉज लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस मे हैव मैनी डिफरेंट वैकेंसीज एट वन टाइम। बहुत ऐसे भी होता है कि बहुत सी वैकेंसीज अनाउंस की होती हैं, मुख्तलिफ जगहों पे इंटरव्यू हो रहे हैं, टेस्ट हो रहे हैं। तो आप जब इस तरह लिखेंगे बस मैंने अप्लाई किया है जॉब के लिए, तो वो सोचेंगे यार ये किस लिए अप्लाई किया है। So be clear, be specific, and you have to say why you are interested in the job and the employing organization. इस बारे में भी बताएंगे। And after writing your application, please must check your spelling and grammar, and very carefully. Your single spelling mistake can rule you out. ठीक है, एक भी गलती जो है ना वो आपके लिए वबाल जान बन सकती है। आप गलतियां करेंगे, वो कहेंगे यार ये बंदा इसने लिखा है बहुत अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स है, मुझे बहुत कुछ आता है। वो कहेंगे यार ये तो रिसीव के स्पेलिंग इसके गलत लिखे हुए, ये तो इसने बातें सारी गलत लिखी हुई हैं, तो ये कैसे, ये तो हमें मरवाएगा। कवरिंग लेटर, सो कवरिंग लेटर शुड बी लाइक दिस। एड्रेस हमने सामने लिख दिया है। मेक इट पर्सनल टू द जॉब एंड एम्प्लॉय, डू केयर फॉर रिसर्च टू फाइंड आउट व्हाट मेक्स देम स्पेशल। मेक इट पर्सनल कैसे, पर्सनल इस तरह आप जब उस जॉब के लिए अप्लाई करें ढूंढें, खुद ढूंढें, गूगल करें, लोगों से पूछें यार इनको किस तरह के बंदे चाहिए, किस तरह की क्वालिफिकेशंस हो, क्या चीज़ हो। जब आप जॉब के लिए अप्लाई करें तो आपके पास पर वो चीज़ें सीवी के अंदर भी मेंशन की हों, आप एप्लीकेशन के अंदर भी वो चीज़ें मेंशन करें ताकि उनको फिल्टर करते हुए, शॉर्ट लिस्ट करते हुए आसानी हो। इंटरव्यू से पहले ही वो अपना माइंड बना चुके हों दैट यू आर गोइंग टू बी सिलेक्टेड। So if you are emailing, put your covering letter in the main email and send your CV as an attachment. ठीक है, अगर ईमेल कर रहे हैं तो ये कवरिंग लेटर आप ईमेल के अंदर इसको कॉपी पेस्ट कर दें। Mention your unique selling points, the skills and attributes that make you stand out from other candidates. उनके बारे में बात करें, आपने जो अचीवमेंट्स की, जो आपके अंदर ऐसी चीज़ें जो बाकियों से मुख्तलिफ हों, उनके बारे में बताएंगे। So that will definitely enhance your chances of selection. And you have to relate your skills to the job. ठीक है, जो skills आप बताएंगे वो जॉब से रिलेटेड ही हों। गार्डनिंग की स्किल है जी बंदे के पास जो है ना मजे चराने की स्किल है जी, बंदे के पास कुत्ते पालने की स्किल है, अप्लाई किसके लिए करना है जी, उसने जनाब इंजीनियर के लिए अप्लाई करना है, तो उसका व्हाट इट हैज़ टू डू विद दिस जॉब। आपने वही स्किल्स वहाँ पे मेंशन करनी है, वही हॉबीज़ भी उसी तरह की मेंशन करनी है। सो योर एप्लीकेशन मस्ट बी attractive, it must arouse interest, it must develop desire to see you personally, and it must move the employer into action. ठीक है, जैसे ही एप्लीकेशन जाए तो वो आपकी तवज्जो, आप उसकी तवज्जो अपनी जाने मबजूल करवा लें, इतनी ज़बरदस्त हो कि वो ख़ुद कहें कि यार ये तो भाई ये तो बहुत ज़बरदस्त बात हो गई है। उनके अंदर ये ख्वाहिश पैदा हो कि वो आपको मिलना चाहें। आपकी एप्लीकेशन इस तरह की, ये देखें अवेयरनेस, ये इस तरह, इस डायग्राम को देखें, एडा मॉडल इसी में अवेयरनेस, सबसे पहले अवेयरनेस है जिसकी बेस पे अटेंशन अट्रैक्ट होती है। उसके बाद
आई इंटरेस्ट के पहले वो बहुत से उनके पास होती हैं। ये फ़िल्टर इसी तरह लगता है कि पहले अटेंशन हासिल करते हैं, अटेंशन सारी की सारी एप्लीकेशन जाती हैं, वो अटेंशन हासिल होती है उन पर, उसमें से फिर वो इंटरेस्ट वाली देखते हैं। लुक एट दिस वन, दिस पिक्चर, इंटरेस्ट वन वाली देखते हैं, उसमें से फ़िल्टर करते हुए फिर जिनको मिलने की उनको ख्वाहिश पैदा होती है उनको शॉर्ट लिस्ट करते हैं। फिर लास्ट में ये एक्शन के एप्लीकेशन देखते हैं, यार ये बंदा, इसकी एप्लीकेशन देखो, ये बंदे पकड़ो, बस उनको फिर वो फाइनली जो है ना उनको सूटेबल की सूरत में शॉर्ट लिस्ट करते, फिर उन्हीं को बुला के इंटरव्यू किया जाता है, उन्हीं की सीवीज़ को खोला जाता है। सो आई एम श्योर दैट यू गॉट एन आइडिया about writing a job application, and I hope that the part of CV related to writing a job application and writing a CV has been completed. So if you have any question related to writing a job application, please do ask me. Buy me attention, interest, buy me desire and action. ठीक है, क्वेश्चन रेज होता है इंटरेस्ट पे, फिर डिज़ायर पैदा होती है। डिज़ायर का मतलब आपके साथ उनको आपके अंदर दिलचस्पी पैदा, और आखिरकार ये एक्शन है कि वो आपको उठा लें वहाँ से। और भी लोग पैदा पड़े होते हैं, और भी बहुत से ऑप्शंस होते हैं, वहीं से एक वो सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। नाउ द हाउस इज ओपन फॉर क्वेश्चंस। कोई सवाल आपके जहन में हो तो प्लीज़ पूछिए। जॉब एप्लीकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन। हाँ जी, सारे खामोश हैं आज, सारे खामोश हैं, सारे खामोश हैं या सारे गैर हाजिर हैं? No question, sir. अच्छा, इसके बाद हमारा जो टॉपिक होगा वो दैट विल बी रिलेटेड टू द इंटरव्यू, एंड आई होप यू विल आल्सो एंजॉय रीडिंग इट। ठीक है, तो अभी आपके पास टाइम है, यू हैव गॉट 10 मिनट्स मोर, एंड आई वुड रिक्वेस्ट यू टू राइट योर ओन CV नाउ। ठीक है, आज अभी बैठ के आप, अभी आपका ये क्लास वर्क है, अभी आप बैठे अपनी CV बनानी शुरू करें। ठीक है, CV भी बनाएं और जॉब एप्लीकेशन भी बनाएं। ठीक है जी।